آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو سلام، ان کا دامن ہاتھ سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 17 لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج دو ٹیمیں فیصل آباد اور سرلے کلاں بڑی مضبوط ٹیمیں ہیں، مگر تیاری کیسی ہے، نتیجہ کیا آتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے ان کو بلاتے ہیں، منچ پر آ کر تشریف رکھیں۔ مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے، علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے۔ فیصل آباد والوں سے گزارش ہے اپنا نام بھی بتائیں گے، کیا مصروفیات ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب فاروق ہے، میرے والد صاحب کا نام امجد فاروق ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد کے شہر مامو کانجن سے ہے۔ میں ماڈل جامعۃ المدینہ نیو سول لائن فیصل آباد میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں اور ساتھ BBA اور ایڈیشنل ڈگری ان آرٹس بھی کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام صابر اتاری ہے۔ میرے والد صاحب کا نام محمد افضل ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق فیصل آباد کے شہر کھڑیاوالا سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں دولت الحدیث شریف یعنی لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ تیسرے اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر شیخ اشتیاق احمد اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام حاجی شیخ اشفاق احمد اتاری ہے۔ میں نے زرعی یونیورسٹی سے MPhil کیا تھا اور اس کے بعد ہومیوپیتھی کا 4 سال کا کورس بھی کیا ہے اور میں نے تقریباً ساری عمر اپنا ہی بزنس کیا ہے اور میری رہائش مین سٹی فیصل آباد میں ہے۔ سرلے کلاں کے اسلام بھائی تعارف کروائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب ظفر ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد ظفر اقبال ہے اور میں جامعۃ المدینہ لیہ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین ہے اور میرے والد محترم کا نام محمد افضل ہے۔ میں BS سائیکالوجی فرسٹ سیمسٹر ہو درس نظامی 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب علی اتاری ہے۔ میرے والد صاحب کا نام افتخار احمد ہے۔ میرا تعلق منڈی بہاؤالدین کے گاؤں مونگ شریف سے ہے اور میں اپنے گاؤں میں امامت کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، دونوں ٹیموں کا تعارف ہو گیا ہے اور اب دونوں ٹیموں کے تعارف کے بعد آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ کہتی ہے دنیا امیر اہل سنت کو سلام، علم نور ہے، عشق کے بول، دعوت اسلامی کہاں نہیں، مکمل کیجئے صحابہ ہمارے بڑی شان والے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے وقت ہوا ہے فیصل آباد والوں سے سوال کرنے کا، سٹارٹ کرنے کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے علم نور ہے۔ سوال ہے فیصل آباد والوں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی فضیلت کو کس مثال سے بیان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جن کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ کیا بات ہے! اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو کہ اس میں روزانہ 5 دفعہ نہائے تو کیا میل رہے گا؟
लोगों ने अर्ज की हुजूर मैल बिल्कुल नहीं रहेगा। फरमाया ये 5 नमाजों की मिसाल है कि अल्लाह उनकी बरकत से गुनाह मिटाता है। मुबारक हो उन्हें जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। क्या बात है, नमाज पढ़ते जाएं, गुनाहों के मैल धुलते जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मिस्र के बादशाहों का लक़ब क्या हुआ करता था? यकीन नूर है जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। इल्म दी से दिल हम मालका नामी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। जिस तरह फारस के बादशाह का लक़ब किसरा, रोम के बादशाह का कैसर, हबशा के बादशाह का लक़ब नज्जाशी था, इसी तरह किप्ती और अमालिका कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्र के बादशाहों का लक़ब फिरौन होता था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले अजान किसने दी? यकीन नूर है जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश। सबसे पहले अज़ान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दी जब बैतुल मक़दस में मेराज शरीफ की रात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत फरमाई। क्या खूबसूरत जमात थी कि इमाम नबी पाक हैं, मुक्तदी सारे अंबिया हैं और अजान देने वाले जिब्रील अमीन हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद कुबा के मुअज्जिन कौन थे? अजान की बात चली है तो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद के मुअज्जिन कौन थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद कुबा के मुअज्जिन हज़रत साद कुर्ज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत साद कुर्ज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या कुरान करीम की तिलावत की उजरत लेना जायज है? जुस्तजू है दीन का पैगाम या रब आम हो। परचमों में सबसे ऊंचा परचमे इस्लाम हो। कुरान पाक की तिलावत की उजरत देना और लेना ये दोनों काम हराम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान वला तक़ुलू बिही, कुरान पाक की तिलावत करो और इसको रोज़ी का ज़रिया ना बना लो। अलबत्ता अगर किसी हाफिज़ साहिब से वक़्त का इजारा कर लिया जाए और इस वक़्त में उससे कुरान पाक की तिलावत करवा ली जाए तो उस सूरत में जो इजारा दिया जाएगा वो वक़्त का होगा और ये दुरुस्त है। जी, वो उजरत तिलावत कुरान की नहीं बल्कि उसके वक्त की उजरत होगी, इसलिए वो जायज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुहम्मद नाम रखने की हदीस पाक में क्या फजीलत आई? आज़माइश आ गया। बोल मीठे इश्क के अशआर की तकरार भी नूर से हम इल्म के कुछ जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपना या अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखे तो अल्लाह ताला बाप और बेटे दोनों को बख्श देगा। क्या बात है। जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने लड़के का नाम मोहम्मद या अहमद रखे अल्लाह पाक बाप और बेटे दोनों को बख्शेगा। क्या बात है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आजकल तो ये रेस लगी हुई है, ऐसा नाम रखना है जो पूरी दुनिया में किसी का ना हो। अरे क्या हर्ज है अगर हमारे घर में कई मोहम्मद हों या अहमद नाम हो। यकीनन नाम मोहम्मद रखने के लिए, पुकारने के लिए किसी सहाबी, किसी अल्लाह के वली, किसी नेक बंदे की निस्बत से नाम रखा जाए, मगर इन नामों को ज़रूर हमने प्रायोरिटी देनी है और बरकतें हासिल करनी है। 3 सवाल हो गए। अब अगले सवाल टॉपिक वाइज होंगे। आइए टॉपिक देखिए, ये बेल बजाएंगे, टॉपिक स्टॉप हो जाएगा, फिर आप जवाब देंगे। इसके हर एक रुकन पर बारिश करम की हो मुदाम की भीग में सरकार से अंबिया किराम, जन्नत में जा। बताइए सबसे पहले सुरीद किसने बनाया? सालन के अंदर रोटी को मिलाकर जो सुरीद बनाया जाता है सबसे पहले किसने बनाया? ऑप्शन दे दें। सरीद सबसे पहले किसने बनाया? ऑप्शन दीजिए जनाब। मोमिनो तुम बच के रहना पुरफितन ये दौर है। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मोमिनो तुम बच के रहना पुरफितन ये दौर है। ये लुटेरे हर तरफ। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हजरत इब्राहिम जो है वो बड़े मेहमान नवाज थे। आपके बारे में यहाँ तक आता है कि आप दस्तरखान पर जब तक ना बैठते कोई मेहमान को तलाश ना कर लेते। मगर सरीद सबसे पहले उन्होंने बनाया कि नहीं? ये आपने कहा उन्होंने बनाया है। हजरत मूसा का ऑप्शन भी मौजूद था। जवाब आपका बिल्कुल ठीक है, हजरत इब्राहिम ने ही सरीद बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरले कलाम
टॉपिक्स दिखाइए। साहबाए किराम, सुलह हुदैबिया की शराइत किस सहाबी ने लिखी थी? चाहे तो ऑप्शन दे दें। मदद लेंगे, चले जनाब, कौन मदद करेगा? वो सामने बैठे। चले भाई, सुलह हुदैबिया की शराइत किस सहाबी ने लिखी थी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीफा चार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। मौला अली ने लिखी थी। जी जनाब, यही जवाब देंगे? यही देंगे। यही देंगे जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी है हमारे फैसलाबाद वालों की। औलिया इकराम, ऑप्शंस दे दें। ऑप्शन दें। इमाम आजम अबू हनीफा की विलादत किस सने हिजरी में हुई? 80, 82 या 75? 80 सन हिजरी में। 80 सने हिजरी में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरले कलाम वालों की बारी है, टॉपिक दिखाइए। जनाब, कुरान पाक सूरह काफिरून में कितने रुकू व आयात हैं? आसान सवाल आ गया है, चाहे तो मदद लें, चाहे तो ऑप्शन लें, चाहे तो कुछ भी ना लें। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन दे दे जनाब। एक रुकू 7 आयतें, 2 रुकू 5 आयतें, 1 रुकू 6 आयतें। 1 रुकू 6 आयतें। आपने कहा 1 रुकू 6 आयतें। अब जाहिर है ये तो आप पढ़ के भी गिन सकते हैं, इसलिए जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। ये सवाल पूरे हो गए जनाब। अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की है, सवाल कीजिए, इनामात दीजिए। अच्छा जी, ये बताइए कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किस बेटे को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना हामिद रज़ा खान। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सुन्नतें और आदाब ये किताब तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जनाब, ये भी हो रहा है, सवालात भी हो रहे हैं और इनामात भी हो रहे हैं। अब कॉल लेते हैं सिलसिले में। मेरा नाम अली हैदर है और मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, हाजी अब्दुल हबीब भाई हम सब घर वाले ज़हनी आज़माइश बहुत शौक से देखते हैं और आज मेरे भाई गुलाम साबिर भी मुकाबले का हिस्सा हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आज वैसे मैं बता देता हूँ कि यूँ समझिए ये पूरा प्रोग्राम ही उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग हो रहा है, क्योंकि आज है ही हमने उर्दू ज़बान रखी थी तो पूरा सिलसिला ही उर्दू में होता है, नात भी उर्दू में होती है। तो आप समझ लें कि उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग शुरू से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर कौमी ज़बान है तो उसको भी अपने शामिल करना था, तो वैसे तो पूरा ही ज़हनी आजमाइश उर्दू ज़बान में हो रहा होता है। स्कोर बोर्ड दिखाइए। 10-10 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। फैसलाबाद वालों से करेंगे सवाल। मैं पहुंचूं कुए जाना में, गरीबा चाक सीना चाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहुंचूं कुए जाना में, गरीबा चाक सीना चाक। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सलामे शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम शौक कहना हाजियो मेरा भी रो रो कर, तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में। तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं पहुंचूं कुए जाना में,
شوق تڑپا کر مدینے میں سلام شوق کے گنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کے گنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی سینہ وہی پر نور ہے آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا کیا خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دولہا جاتے ہیں ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دولہا جاتے ہیں جواب درست دے دیا ہے یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ اب تو آقا در پہ اپنے ہم کو بلوا لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں جواب درست دے دیا ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما گئے نورانی ہر سمت سما گئے نورانی معراج کو دولہا جاتے گئے یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے گئے یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں ابس نہ اوروں کے آگے یوں تپیدہ ہونا تھا ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا جواب درست دے دیا ہے ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا جواب درست دے دیا ہے خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے جواب درست دے دیا ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے جواب درست دے دیا ہے خدائے قہار گئے غضب پر کھلے گئے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آقا شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور
तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। क्या बात है, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में। जब आका ऐसे करीम हैं और सुभान अल्लाह उनके हाथ भी खुले हैं, खजाने भी भरे हैं, तो खैर ही खैर है इंशाअल्लाह। चले जनाब, यहाँ 4 अशार तो हो गए हैं, मगर अब बारी है आपको तर्स सुनानी है और आपने वो तर्स पहचाननी है। जी गुलाम, ये अपने फैसलाबाद वालों को सुनाइए। नेमतें बांटता जिसम तो ज़ीशान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का कलम दान गया। तर्स भी पहचानी और तर्स सुना भी दी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अरे जनाब, सरले कला वालों की बारी है। इसके हर एक रुकन पर बारिश करना, बस यही जन्नत में जाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे के बदरुद्दा तुम पे करोड़ों दरूद। ये बैठेगी इस पे। काबे के बदरुद्दा तुम पे करोड़ों दरूद। नहीं, दोनों नात खां बैठे सीनियर, वो मना कर रहे हैं। आप तर्स कौन सी है सुना दें, ये किस नात की तर्ज है? लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में। चले कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन आगे भी मौका मिलेगा। अब बारी यहाँ अशार की है। अशफाक भाई कोई शेर पूछे, कंप्लीट करेंगे हमारे इस्लामी भाई यहाँ हाजरीन के लिए। अमीर अहले सुन्नत का शेर है, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। ये तो पूरा स्टूडियो मिलके जवाब दे देगा। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह। अशफाक भाई कोई तर्ज भी जी हमिंग आप करें इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। हाँ भाई, क्या पुरानी तर्ज ले आए हैं भाई आप, माशाल्लाह। वो पीछे भी रखा है इस्लाम भाई, थोड़ा सा नजरों के हवाले से भी माशाल्लाह, चलो की हौसला अफजाई भी जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जावेद अत्तारी बिन खुदाबश खत्री मिरपुर खास से आए, स्पेशल पर्सन नाबीना। ये अहले बैत ये है, अहले बैत बाग़े जन्नत के, बाग़े जन्नत के हैं शानदार अहले बैत। चले मान लेते हैं, बाग़े जन्नत के हैं बहरे, बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत। सुबह तैबा में हुई भी इसमें हो जाएगा ना। जी जी, सुबह तैबा का एक शेर इस तरह पे सुना दे। हाँ, ये सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर
انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جب چھوٹے چھوٹے یہ کلام سنتے تھے نا اس زمانے میں یہ طرز بہت پڑھی جاتی تھی اور بہت پرانا ماشاءاللہ زمانہ یاد آیا. جی تحفہ پیش کریں. ماشاءاللہ ان کو انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ عطر اور مسواک تحفے میں دی جائے گی. یہ عبدالحبیب بھائی کچھ عرض یہ کر رہا تھا عبدالحبیب بھائی کہ نا کوئی کتاب کو تحفہ دے دے چاہے تو میرے ساتھ بچے جو وہ پڑھ لیں گے. کیا بات ہے, بالکل تحفہ کیوں نہیں دیں گے کتاب بھائی, کتاب بھی تحفے میں دے اچھی سی انشاءاللہ. چلیں جناب, اور اب باری ہے ناظرین ایک کال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. ماشاءاللہ. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے عبدالحبیب انکل, مجھے ذہنی آزمائش پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں بلا ناغہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. مجھے آپ کی نعتیں بہت پسند ہیں. میری آپ سے عرض ہے کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. اس نعت کا ایک شعر سنا دیجئے, جزاک اللہ خیرہ. ہے بہت پیاری نعت ہے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں. انشاءاللہ. چلے جناب اسکور بورڈ دکھائیے, اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ایک ہی دلچسپ ہے اور دلپذیر. 18 نمبر سرلے کلاں, 20 نمبر فیصل آباد. اگلا سیگمنٹ دعوت اسلامی کہاں نہیں. جناب فیصل آباد کے اسلامی بھائی آئیں گے, 60 سیکنڈز ہوں گے. دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے اور آپ نے اس میں ڈھونڈنا ہے. ملک کا نام ہے موزمبک. تلاش کیجئے موزمبک دنیا میں کہاں ہے, اس کا کیپٹل بھی بتائیے. علاقہ تو صحیح ڈھونڈ لیا ہے, افریقہ کے بر اعظم میں پہنچ گئے ہیں اور لگتا ہے ملک بھی ڈھونڈ لیا ہے. کیا صحیح پہچانا ہے؟ جی جناب, یہ بر اعظم افریقہ ہے اور افریقہ میں یہاں موزمبک ہے. اب موزمبک کا کیپٹل بتائیں گے. دارالحکومت میپوٹو. ماپوتو دارالحکومت ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں فیصل آباد والوں نے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی میری دعوت اسلامی کس طرح پوری دنیا میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. جناب صرف موزمبک کے اندر 4 جامعۃ المدینہ ہیں, 18 مدارس المدینہ ہیں, ہزاروں اسٹوڈنٹس اور 23 کے قریب مدنی مراکز صرف موزمبک میں دعوت اسلامی کے موجود ہیں. آپ دیکھیں کہاں کہاں آپ کی ہماری دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے. سرلے کلاں. آئیے جناب, آپ نے ڈھونڈنا ہے کینیا. بتائیے دنیا کے نقشے پر کینیا کہاں ہے اور اس کا دارالحکومت بھی بتائیے. کینیا کی تلاش ہے. کینیا کی کافی اور چائے تو مشہور ہے, مگر اب کیا ملک تلاش ہو گیا. یہ بھی پہنچ گئے ہیں بر اعظم افریقہ اور غالباً ملک بھی تلاش کر لیا ہے. کینیا بالکل ٹھیک ہے. بتائیے کینیا کا دارالحکومت کیا ہے؟ نیروبی. نیروبی. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. دعوت اسلامی کینیا کے اندر جامعۃ المدینہ. الحمدللہ کئی اسلامی بھائی درس نظامی کمپلیٹ کر کے کچھ علماء بھی بن چکے. مدرسۃ المدینہ موجود ہیں. کینیا کے اندر دعوت اسلامی کے 8 مدنی مراکز موجود ہیں الحمدللہ عز و جل. اب باری پھر فیصل آباد والوں کی ہے اور آپ نے اب ذرا مشکل ملک ہے ڈھونڈنا ہے. تنزانیہ. تلاش کیجئے کہاں ہے, اس بر اعظم میں ہے.
आज लगता है ज़हनी आजमाइश अफ्रीका के बर्रे आजम में ही घूमता रहेगा। तंजानिया ढूंढ लिया है जनाब, बताइए इसका कैपिटल क्या है? डोडोमा। हाँ, डोडोमा। डोडोमा जो है वो तंजानिया का कैपिटल है। और तंजानिया में भी जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, 4 मदनी मराकिज मौजूद हैं और हजारों आशिकान रसूल तंजानिया दावत इस्लामी के साथ शामिल हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सर लेक कलां वालों की बारी है जनाब। मलावी तलाश करना है आपने। मलावी दुनिया में कहां मौजूद है? ये दूध की मलाई नहीं बल्कि मुल्क का नाम मलावी है। गोल नक्शा है दुनिया का, वहां भी गौर कर सकते हैं। 30 सेकंड है आपके पास। ढूंढ लिया है लगता है तो बर्रे आजम अफ्रीका में ही। अब देखना है कि ये मलावी है या किसी और मुल्क को इन्होंने चूज कर लिया है। लेसोथो, साउथ अफ्रीका को आपने क्लिक कर दिया है यहाँ जी। इसीलिए हमने कहा था कि आप जो है उसको यहाँ तलाश करें। चलें इसमें ढूंढ के बताएं मुझे। चलें थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं। आप यही अफ्रीका है ना? ठीक है, मलावी सही तलाश किया इन्होंने। अब इनकी बारी है, बताइए इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल लेलू नगवे है। लिलोंगवे नहीं, आपको जो उर्दू में लिलोंगवे। मलावी का जो कैपिटल है वो लिलोंगवे है। और लगता है मजलिस को इनकी प्रोनाउंसिएशन भी बतानी चाहिए। तो चले, जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं। मलावी वालों से माजरत, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो जामियतुल मदीना, मदारिसुल मदीना, 15 मदनी मराकिज दावत इस्लामी के मलावी में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मलावी की तो क्या बात है, मलावी में हमें मलावी से ये खबरें आती रहती हैं। तो बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बाशिकान रसूल भी बने। अब तक जो मालूमात है कि हजारों गैर मुस्लिम जो है मलावी में मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के हाथों पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बल्कि कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा एक अजीम शान मंजर कि निगरान शूरा भी वहां तशरीफ ले गए थे और एक इज्तिमा में 1500 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया था। तो ये मेरी आपकी दावत इस्लामी, अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को सलामत रखे। अल्लाह का करम ऐसा करे तुझ पे जगह तेरी धूम मची हो, मची हो, मची हो, मची हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए भाई, आपने बहुत प्यारा शेर सुनाया। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 22 नंबर सरले कलां, 24 नंबर फैसलाबाद। अगला सेगमेंट जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। जनाब कुछ अल्फाज हैं जो मुकम्मल करने हैं। फैसलाबाद वालों को बताइए क्या मुकम्मल करना है। क्या इसमें अलिफ है? अलिफ बताइए, क्या इसमें अलिफ है? जनाब अलिफ मद आ गया है। जल्दी। क्या इसमें नून है? नून भी है। क्या इसमें कॉफ है? कॉफ, कॉफ भी आ गया जनाब। इसमें रा है? रा भी आ गया। जीम? जीम भी आ गया।
या भी आ गया। दाल। क्या बात है, कुरान मजीद। कोई गलती नहीं की, कुरान मजीद पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। सरले कलाम। जिसके सीने में सजा सीना वही पुर नूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। मोमिनो तुम बच के रहना पुरफितन ये दौर है। इसमें अलिफ है। अलिफ बताइए। अलिफ पूछा गया है, इसमें अलिफ है। अलिफ तलाश किया जा रहा है। जी अलिफ आ गया जनाब। या है इसमें। जी या भी है। नून है इसमें। नून इसमें नहीं है। वाव है इसमें। वाव भी नहीं है। जिसके सीने में सजा सीना वही पुर नूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। रा है इसमें। जी रा है। रा दो दो हैं। को सलाम कहती है दुनिया अमीर अहले सुन्नत को सलाम और मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत को सलाम। काफ है। जी काफ। छोटी डंडी वाला। कराची वाला। कराची वाला काफ नहीं है। अब मैंने इशारा देना है, बड़ी अजीम खातून है। बा है। जी बा है। आइन है। हा है। हा भी है। दो दो हा हो गए हैं। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा 3 गलतियां की हैं, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। चले जनाब, बारी है फैसलाबाद वालों की, मुकम्मल कीजिए। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। अलिफ है इसमें। बताइए अलिफ है कि नहीं है। अलिफ नहीं है। नून है इसमें। नून भी नहीं है। जिसके सीने में सजा सीना वही पुर नूर है। आ गया फिर ज़हनी मीम है इसमें। सच बताऊं इसमें मीम भी नहीं है। ये एक बहुत प्यारा सा कुआं है। बा है। बा आ गया है। हमजा। हमजा भी आ गया। रा। रा भी आ गया। रा तो शायद दो दो आई। उन्होंने आना तो दो। मीम। जी मीम। नहीं मीम भी नहीं है। अब मैं और क्या, ये तो बड़ा मशहूर कुआं है। हा है इसमें। हाँ जी। हाँ। अब आप नाम लेंगे। बीर रोहा। बीरे रोहा। 4 गलतियां हो गई हैं, 1 नंबर मिला है। जनाब बारी सरले कला वालों की है, मुकाबले में वापस आने का मौका है इनके पास। किस कदर है शानदार बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार। इसका हर एक मरहला भी किस कदर है शानदार। फर्ज वाजिब और सुन्नत जल्दी करें जी। या है। सजाने के लिए तो नूर है। हाँ बिल्कुल नूर है। जिसके सीने में सजा सीना वही पुर नूर। वाव है।
वाओ इसमें नहीं है। जीम है, जीम है, नून है, पहले जीम को आने तो दो, किधर जीम लग रहा है, पहले ही नून कह रहे हो, नून नहीं है, जल्दबाजी कर रहे हैं। मीम है, मीम है, सीन है, जी सीन भी है, दाल है, दाल भी है, स्वाद है, सौद भी है, खौफ है, खौफ भी है, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। 2 गलतियां की हैं, 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। क्या बात है जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, उससे पहले अगर स्कोर बोर्ड हमें दिखा दें। बस यहीं जन्नत में जाने 27 नंबर है सरले कलां, 30 नंबर है फैसलाबाद के। 3 नंबर से फैसलाबाद वाले आ गए हैं, मगर ये मुकाबला कभी भी पलट सकता है। और अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सहाबा हमारे। बड़ी शान वाले जनाब, मैं पहले इस बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। सहाबा इकराम के नाम लिखे हुए हैं और उसके आगे कुन्नियत लगानी है। सैयदुना जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदुना सईद बिन आस, सैयदुना जाफर बिन अबू तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदुना अब्दुल्ला बिन जाफर, सैयदुना अंजशा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन। इन 5 सहाबा इकराम के नाम के आगे इन्होंने कुन्नियत लगानी है। यहाँ सैयदुना मिक्दाद बिन असवद, सैयदुना नुअमान बिन बशीर, सैयदुना तमीम दारी, सैयदुना नफी बिन हारिस, सैयदुना इक्रमा रज़ियल्लाहुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। जनाब फैसलाबाद वाले यहाँ आ जाएं, सरले कलाम वाले वहाँ चले जाएं। आपके पास 60 सेकंड्स होंगे, जब मैं कहूँगा तो आपने तलाश करनी है कुन्नियतें। जी आप वहाँ पहुँच जाएं पहले। जनाब आपका वक्त शुरू होता है अब। हम भी देखें गुंबदे खजरा हमारी ईद हो, दिल तड़पता है मदीने की हमें भी दीद हो। हम भी देखें गुंबदे खजरा हमारी ईद हो, अब तो आका दर पे अपने हमको बुलवा लीजिए। जुल्म जहाँ पर जो किए उनको मिटाने के लिए। तो नूर है, हाँ बिल यकीन नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही पुर नूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश, आ गया कहती है दुनिया अमीर। कमोबेश 15 सेकंड बाकी हैं। दीनो मिल्लत आला हज़रत को सलाम, कहती है दुनिया अमीर अहले सुन्नत। 5 सेकंड रह गए हैं, अगर लगा लिए हैं तो दोबारा चेक भी कर लें ताकि गलती ना हो। जनाब अब वक्त पूरा हो गया है। सरले कला के इस्लाम बेग यहाँ खड़े रहेंगे। हजरत सैयदुना जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू अब्दुल्ला अबू खालिद आपकी कुन्नियत, सैयदुना सईद बिन आस अबू उहैहा, क्या बात है, सैयदुना जाफर बिन अबू तालिब आपकी अबुल मसाकीन, सैयदुना अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हाशिम आपकी कुन्नियत, सैयदुना अंजशा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जो कुन्नियत है अबू मारिया, क्या बात है, पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। आप फैसलाबाद वालों की बारी है। सैयदुना मिक्दाद बिन असवद रदी अल्लाह तआला अन्हु अबू असवद, सैयदुना नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु अबू अब्दुल्ला, सैयदुना तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु अबू रुकैया, सैयदुना जनाब सैयदुना नुफे बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकरा। अच्छा जनाब सैयदुना इक्रमा रदी अल्लाह तआला अन्हु अबू उस्मान, क्या बात है, पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। अल्लाह करीम हमें सहाबा इकराम का फैजान भी अता फरमाए और उनकी मोहब्बत भी नसीब फरमाए। एक कॉल लेते हैं सिलसिले में और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे।
शौकत हुसैन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ कादरपुर रामा मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से। आपका अंदाज बहुत प्यारा है। दुरुस्त जवाब मिल जाने की सूरत में भी जितनी अट्रैक्शन आप इस प्रोग्राम में पैदा करते हैं, अल्लाह आपको मीठा मदीना दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। बड़ी प्यारी आपने दुआ दे दी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 32 नंबर सरले कलां, 35 नंबर है फैसलाबाद के। वक्त हुआ है नेक अमाल का जायजा लेंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं, मुख्तसर महफिल भी होगी। अशफाक भाई साथ है हमारे, हमें नात भी सुनाएंगे और फिर सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी नियतें की, पाँचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशरा को चाश्त पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी की ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमाम शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, आज अशफाक मंदरी भाई भी हमारे साथ हैं, नाज शरीफ भी हमें सुनाएंगे, बल्कि लगता है कुछ और भी सुनाएंगे। एक जवाब दिया गया कि वो जो तर्ज हसनैन भाई की आवाज़ में हमिंग हुई थी, तो उसमें काबे के बदरुद्दुजा पढ़ा था, तो किसी ने तवज्जो दिलाई है कि इसको देख लें दोबारा। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप ही फैसला करें। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करो दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करो। बैठ तो जाएगा, बैठाने वाला होना चाहिए। आप देखें, निगरान भी आप हैं नात मजलिस के। अगर ये पॉइंट, क्योंकि उनके पॉइंट कम किए गए थे ना, तो इसलिए मैसेज भी आया, फिर आपने भी कहा कि बैठ जाती है तो दोबारा कर दें आप। ठीक है, जरा 2 नंबर इनके बढ़ा दिए जाए माशाल्लाह, और इनका ये जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। अब देखिए, हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर हमसे कोई ह्यूमन एरर हो जाए, बाज़ औक़ात इसको लोग नेगेटिव भी लेते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर एक बहुत स्पीड में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अशफाक भाई, हसनैन भाई, ये दोनों सीनियर नातख़्वां हैं, इसीलिए मैंने उन्हीं की तरफ रुजू किया था, मगर फिर इन्होंने ही दोबारा कहा कि नहीं, इसको हम देख लेते हैं, और फिर उन्होंने जब इसको किया है, इसको हमेशा पॉजिटिव ले। बच्चे सारे हमारे हैं, और आज हमें कोई गरज नहीं कि कौन सी टीम आगे जाती है, हमारी तो दुआएं सब मदीने जाएं। असल मकसद तो मदीने पहुंचना है, इंशाल्लाह मदीने जाएं, तो इसको पॉजिटिव लिया करें। और भी टीमों के इस्लाम पे होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। चले जनाब, अब नात शरीफ की तरफ।
اے کاش پہنچ کر درے درے جانا مدینہ ہو جاؤں میں سو جان سے قربان مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. اس کلام کے ساتھ میری ایک بڑی زندگی کی یادگار یاد وابستہ ہے. الحمدللہ جب امیر اہل سنت کے ساتھ غالباً 2017 تھا، ہم مدینہ شریف جا رہے تھے 2018 اور ہم گاڑی میں تھے اور امیر اہل سنت کے ساتھ میری بھی حاضری تھی. مدینے کا راستہ تھا. میں نے اشفاق بھائی کو بتایا کہ آپ کی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اس وقت اشفاق بھائی کی آواز میں ہم موبائل پر یہی نعت سن رہے تھے کہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یقین کریں اللہ کریم آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے کہ جب آپ مدینے جاتے ہوئے اس نعت کو سنتے ہیں نا اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ آج ہم اسٹوڈیو میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں مکے سے مدینے کے راستے میں یہ پڑھنا اور سننا نصیب فرمائے. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ. آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے سکانے کوچائے دلدار کی پیغم بلائے لوں تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں. کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے
جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں میں پہنچوں کوئی جانا میں گرے چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں بغضاد اپنا عالم سمجھے گا کیا اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ میں فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی میں نے آپ کو نعت سنانی ہے. اے خط میں رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے پیارے پیارے بچوں نے اسلامی بھائیوں نے ہمیں حدیث پاک کی ویڈیوز بھیجی ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی ویڈیوز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے. میرا ساتھی یعنی جنت میں عثمان رضی اللہ عنہ ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے. میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے. میرا ساتھی یعنی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے. میرے ساتھی جنت میں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے. میرا ساتھی یعنی جنت میں عثمان تعالیٰ عنہ ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے. میرے ساتھی جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 34 سرلے کلاں، 35 فیصل آباد. ایک نمبر سے صرف فیصل آباد آگے ہے. اور اب سیگمنٹ کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. جناب اب مقدس مقامات دکھائے جائیں گے، غور سے دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ سے سوال ہوگا کہ یہ مقدس مقام کون سا ہے. دکھائیے جناب. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنبول. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مزار مبارک حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مزار مبارک حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. مزار مبارک حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولائی ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مزار مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. مزار مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. مزار مبارک حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک سیدہ زینب رضی اللہ عنہا. جنت المعالی مکہ مکرمہ. مزار مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. مزار مبارک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. جنت البقیع مدینہ منورہ. مزار مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے. بڑی تیزی سے یہ مزارات اور مقدس مقامات گزرے. اب دیکھنا یہ کہ پہچان سکتے ہیں کہ نہیں. فیصل آباد والوں کی بات. 10 نمبر کھول دیں. 10 نمبر. آج تو میں بھی پہنچ گیا ہوں.
हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल, उनका मज़ार मुबारक है। क्या ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार है? मैं भी पहुंचा तो वही हूँ, या तो दोनों गलत होंगे या हम दोनों सही हो जाएंगे। देखते हैं कि ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पूरे 5 नंबर फैसलाबाद वालों ने हासिल किए। सरले कलाम 11 नंबर। 11 नंबर। हजरत सैयदना दाता अली हजवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी का बाजार है? बताइए जनाब। गलती पर कोई नंबर नहीं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। पूरे 5 नंबर। फिर बारी है फैसलाबाद वालों की। 11 नंबर खोल दें। 11 नंबर। जल्दी मत कीजिएगा। जन्नतुल बकी है। क्या ये जन्नतुल बकी है? अगर जन्नतुल बकी है तो 5 नंबर इन्हें मिलेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। सरले कलाम फैसलाबाद ने पूरे 10 नंबर लिए हैं। 5 और 5 दोनों बार। जी 11 नंबर। 11 नंबर। जन्नतुल माला। क्या ये जन्नतुल माला है? अगर ये जवाब सही है तो इधर भी 5 नंबर चले जाएंगे। बताइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। दोनों टीमों ने कोई गलती नहीं की। पूरे पूरे 10-10 नंबर ले गए। इसका मतलब अब आखिरी राउंड फैसला करेगा किसने मुकाबले में आगे जाना है। और इस सेगमेंट का नाम है जोश के साथ। 5 सवाल हैं और 5 अशार हैं। सवाल। हजरत वहब बेल बजाई है जनाब। सरले कला वालों ने सवाल पूरा नहीं सुना है। हजरत वहब यहां तक सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि हज़रत वहाब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खौफ खुदा कैसा था? ये सवाल नहीं है। हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हसद की तबाहकारियों से मुतालिक क्या फरमाते थे? ये जवाब, ये सवाल था। 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जोश जरूर चाहिए मगर साथ होश भी चाहिए। अब शेर की बारी है। तलखियों में बेल बजाई है फैसलाबाद वालों ने और एक ही लफ्ज सुना है। तलखियों में खुश रहूं और लज्जतों से बेनियाज, काश काबू में रहे ये मेरा नफ्स बदलगाम। काश काबू में रहे ये मेरा नफ्स बदलगाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। चले जनाब, सवाल की बारी है। हदीस पाक में दुआ फिर बेल बजाई फैसलाबाद वालों ने। लफ्ज़ दुआ तक सुना है। अब ये दुआ से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में दुआ के देर से कबूल होने की क्या वजह बयान की गई है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हदीस पाक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई ऐसा शख्स जो कि अल्लाह पाक को महबूब हो और वो अल्लाह पाक की बारगाह में किसी सवाल के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल से कहता है कि ये जो मांगता है इसे अभी ना देना, क्योंकि इसका मेरी बारगाह में हाथ उठाकर मुझे पुकारना मुझे पसंद है। और जब कोई ऐसा शख्स जो कि गुनाहगार हो और अल्लाह पाक को नापसंद हो, वो शख्स अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उस वक्त अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल से फरमाता है कि ये जो मांगता है इसे दे दो, क्योंकि इसका मेरी बारगाह में हाथ उठाना मुझे पसंद नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। बाज़ औक़ात दुआ कबूल नहीं हो रही होती और हम परेशान हो रहे होते हैं। क्या मालूम अल्लाह की तरफ से अगर ये फरमाया जा रहा है कि इसको और मांगने दो, इसका मांगना पसंद आ रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। चले जनाब, अब बारी है हमारे शेर की। ऐ काश, ऐ काश। आप सही शेर सुना दें।
काश से तो बहुत सारे अशार आते हैं, 5 सेकंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और यादे मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। फिर आपसे गलती हो गई है। जब ऐसा कोई लफ्ज हुआ करे जिसमें बहुत सारे शेर आते हैं तो थोड़ा और इंतजार करें ताकि आपको अगला लफ्ज मिल जाए। गलती हो गई है, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे जनाब। अब बारी है सवाल की। खिलाफते फिर बेल बजाई है जनाब सरले कला वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि खिलाफत राशिदा किसे कहते हैं? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? खिलाफत राशिदा वो खिलाफत जो मिनहाज नबूवत यानी कि नबूवत के तरीके पर हो, नबवी तरीके पर हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आपको तर्स सुनाई जाएगी। देखें ये कलाम कौन सा है। बेल बजाई है फैसलाबाद वालों ने। इश्क के रंग में रंग जाए मेरे यार। ये फैसला हसनैन भाई ऐसा ही है। इश्क के रंग में रंग जाए मेरे यार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी सवाल की है। खिलाफते फिर बेल बजा दी है फैसलाबाद सरले कला वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि खिलाफत राशिदा का मनसब किन हस्तियों को नसीब हुआ? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फिर तर्स सुनाई जाएगी, गौर से तर्स सुनिए। फिर बेल बजाई है। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब सवाल है अल्लाह पाक और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फैसलाबाद वालों ने बेल बजाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में किस तरह पैदा हो? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? कसरत से अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिल में इस तरह पैदा होगी कि कुरान मजीद की कसरत से तिलावत की जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नात ख़्वानी खुश इल्हान नात ख़्वानों से सुनी जाए और अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के हम पर जो एहसानात हैं उनको याद किया जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी शेर है ठहरोगे। फिर फैसलाबाद वालों ने बेल बजाई है। ठहरोगे शफात के हकदार यकीनन तुम आ जाओ गुनाहगारो जो एक बार। हाय हाय आ जाओ गुनाहगारो एक बार मदीने में। फैसलाबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। ये जीत कर भी रो रहे हैं, वो पीछे रहकर भी अश्कबार हैं। यही ज़हनी आजमाइश की खुसूसियत है, मदीने की याद में रुलाता है। मैं दुआ गो हूँ सरले कला वालों के लिए, अल्लाह आपको मदीने की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। प्री क्वार्टर तक पहुँचना भी आसान नहीं है, इतनी अच्छी तैयारी करके आप आए थे। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं, कुरान दाजी और दीगर चीजें इंशाल्लाह अशफाक भाई और हमारी टीम करेंगी। आज के बेस्ट परफॉर्मर मोहम्मद गुलाम शब्बीर अत्तारी, तैयब अत्तारी, दोनों ले ले भाई, मजलिस ने आपको दिया है, आप इनको शामिल कर लें, तीनों शामिल हो जाएं। माशाअल्लाह, मुबारक हो भाई फैसलाबाद, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर मौजूद बड़ों में से कुरानदाजी में आज तोहफा मिल रहा है 5916। किसके पास 5916? आ जाए भाई, कह दीजिए सुभान अल्लाह भाई। जो जिसका नाम निकले उसकी दिलजोई भी किया करे। बच्चों में से सब बच्चों को चाहिए गिफ्ट, आज मिलेगा गिफ्ट 588। इतना किसका है? 588 वाले हाथ उठाएं, एक डिजिट और भी है या आगे करो है। 588 9 है कि 0 है? 5880। आपके पास 9 है? 5880 वाला कोई है बच्चा? नहीं तो 9 वाला आ जाए। बच्ची है
چیک کر لیں ذرا ایک بار, شان بھائی چیک کر لیں. 5880 یہی ہے, ماشاء اللہ, مبارک ہو. آپ کے لیے بھی تحفہ, آپ کے لیے بھی تحفہ, سیدھے ہاتھ سے, ماشاء اللہ. کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, مصطفیٰ خیر الورا, سرور ہر دوسرا, اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا, ہم بدوں کو بھی نبھا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم, از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم, صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم, دور ہو سبھی کے رنج و غم, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دل ذہنی آزمائش آ گیا, آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا, العلم